Can you see my slide? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Next, this is another program. In this program, you can see the questions. Write a program to get x value from P1 and x squared to P2. So what does it mean? Please see my copy also, so that it will be very much helpful for everyone. So say P1, we are given any value. We are given any value. Means, say we are given 0, 5. What are the 5 square? What are the 5 square? 5 को स्क्वायर करने से कितना होता है? 25. 25. 25. In hexadecimal, it how much? Subtract 16. हाँ कितना होगा 16 subtract करने से? 19 होगा कि नहीं? Is it clear? Nine. So it is a 19. Okay. So 25, it's nothing but it is 19. So basically, now how it will be display? It will be display on port 2. Port 2 में ये display होगा. कैसे? मान के चलो in port 2 2.0, P2.1, P2.2, as so on, P2.7. Every pin is connected with a LED. Every pin is connected with a LED. Okay, every pin connected with a LED. Okay. Next, say this is every pin is connected with a LED. So now you can say if you are given 19 over here, so 19 means 0, 0, 0, 1 and 1, 0, 0, 1. Am I right? It's a 19. Yes, sir. So 19 means 0, 0, 0, 1 and 1, 0, 0, 1. So these LED will be glow, these LED will be glow, these LED will be glow. So you can, you can see that is a 19 will be display. Is it clear to all of you? Question is clear to all of you? Question is clear to all of you? Whatever the value you are given in a port 1, it will be display on port 2. Port 2 are connected with the LED. Say I'm given 5. So 5 square is 25. Equivalent is 19. So 19 will be display over here. Is it clear to all of you? Yes, sir. yes Any sir. queries if you have, you can ask me. First, you see the questions first, whatever they ask. Write a program to get the value x in a port 1 and x square in port 2. And send x square to port 2 means x तुमको मिलेगा port 1 से x square, that is x जो दिया है उसका square वो हम port 2 से भेजेंगे. Is it clear to all of you? yes sir. अभी ये प्रोग्राम हम बाद में समझाएंगे. So first I am explaining you this one. Warjit 300H. Warjit 300H DB. Just see 0 square 0, 1 square 1, 2 square 4, 3 square
3 square, 9. 4 square, 16, 5 square, 25, 6 square, 49, 36, 7 square, 49, and so on and so forth. Is it clear? How it will be stored? In 300H, it will be stored 0. In 301H, it will be stored 1. 302H, it will be stored 4. Something like that. 300 is 0. 301, it's a 1. 302, it's a 4. 303, it's a 9. Is it clear to all of you? One after another. Is it clear to all of you? Yes, sir. Everyone is clear, or anyone have any queries? किसी के पास कोई Sir, queries है तो बोलो. हाँ. ये नहीं समझ में आया कि पोर्ट 1 में क्या वैल्यू है। कोड 1 में हम लोग कुछ देंगे भाई। बाहर से, सर ORG 0 का मतलब सर यहाँ पे? वो हम समझाए नहीं अभी तक. ये प्रोग्राम हम समझाए नहीं, हम सिर्फ ये तीनों लाइन समझा रहा हूँ. क्यों किया? ORG 300 मतलब 300 से स्टार्ट किया. 300 में हम 0 स्टोर किया, 301 में हम 1 स्टोर किया, 302 में हम 4 स्टोर किया, 303 में 9 स्टोर किया. जैसे 300 में 0 स्टोर है, 301 में 01 स्टोर है, 302 में 4 स्टोर है, 303 में 9 स्टोर है. इसके आगे भी हम नहीं बोले. इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो. यस सर। 05 जो है हम लोग दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम लोग दे सकते हैं. कैसे दे सकते हैं उसके बारे में हम बाद में बोल रहे हैं, कैसे दे सकते हैं. मगर मान के चलो हम 5, 4, 3, 2 कुछ भी हम देंगे बाहर से. इज इट क्लियर और नॉट? 303 में 9 कैसे आ गया, पता चला ना? नहीं चला? बोलो. ORG के बाद हम जो वैल्यू दिया है उसी के बाद से हर एक स्टोर करना शुरू किया. इट्स क्लियर? ये जो 149 है वो कुछ भी हो सकता था। कुछ भी ना, ये तो स्क्वायर देखो ना. 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0. 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1. 2 स्क्वायर कितना होता है? 4. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 36, एज सो ऑन एंड सो फोर्थ. बिकॉज हमको स्क्वायर निकालना है. हम लोग कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, मगर हमको तो निकालना है इधर स्क्वायर ना. इज इट क्लियर? यस। कोई नंबर के बाद कोई H, कोई B कुछ लिखा हुआ है? ये जो नंबर लिखा हुआ है 0, 1, 4, 9, इसके बाद कोई कुछ लिखा हुआ है? जैसे इसके बाद H लिखा है. H मतलब हेक्सा. इसके बाद कुछ नहीं लिखा है मतलब डेसिमल. डेसिमल. डेसिमल। तो ये सारा डेसिमल के हिसाब से कैलकुलेट होगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर. अभी देखो, स्टोर होगा तो डेसिमल में नहीं, तुम दे सकते हो डेसिमल में, मगर स्टोर होगा कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू. 16 का हेक्साडेसिमल कितना होता है? 10H. राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स a 10H. You know, for 5 it's a 25, means 5 square is a 25. So 25 in hexadecimal it's a 19. So देखो, in 305 it's a 19. 306, if you convert 36 into hexadecimal, it will be 24. How, sir? 16 का multiplication, that is a 32. You are subtract, you are getting 4. कितना subtract किया? 32. 16 into how much? 2. So that is 24. 307, 31 means from 81. Is it clear? 308 is a 40, means from 80, from 64. And 309 is the 51 from 81. And 307 is first from 49. It's clear to all of you? Corresponding hexadecimal value will be stored in the corresponding memory location. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो. नहीं आया तो बोलो, हम 100 बार बोल सकते हैं. अभी प्रोग्राम नहीं समझाया, अभी सिर्फ हम लुकअप टेबल समझा रहा हूं. इसको लुकअप टेबल बोलते हैं. बोलो. if you are silent then it's very difficult to me. सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर.
देखो मैं ये प्रोग्राम के बारे में भूल जाओ, ये प्रोग्राम के बारे में भूल जाओ। ऑल ऑफ यू कैन सी ना माय स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। देखो इसके बारे में भूल जाओ, हम सिर्फ ए जगह के बारे में बोल रहा हूँ, सिर्फ एंड सिर्फ ए जगह के बारे में बोल रहा हूँ। ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं इस जगह के बारे में हम बोल रहा हूँ। पहले इसका क्या फंक्शंस है, क्या फंक्शंस कर रहे हैं। देखो पहले ORG 300H मतलब क्या हुआ, 300 से ये जो टेबल है ये सारा स्टोर होना शुरू करेगा। हर एक का नंबर के बाद देखो कुछ नहीं लिखा हो, जैसे 300 के बाद H लिखा है, H मतलब इट्स अ हेक्साडेसिमल नंबर, राइट? H मतलब इट्स अ हेक्साडेसिमल नंबर, H मतलब इट्स अ हेक्साडेसिमल नंबर। मगर ये जो नंबर है देखो इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये सारा डेसिमल में हम दिए हैं, मगर हम देंगे डेसिमल में, मगर ये ऑटोमेटिकली जब प्रोग्राम करेगा ये ऑटोमेटिकली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके लेगा। तो देखो जीरो का 9 तक डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल बोथ आर इक्वल, देयर इज अ नो चेंज। अप टू 9 देयर इज अ नो चेंज। 10 होने से हेक्साडेसिमल में वो हो जाता है ए, 11 होने से वो हो जाता है बी, मतलब 9 तक देयर इज अ नो डिस्टिंग्विश। देखो 0 1 4 9 ये जो चारों है, ये जो चारों है, ये चार यू नो ऑल द वैल्यू व्हाट एवर यू नो these 4 value 0 1 and 4 and 9 all value are stored just 300 00h 301 01h 302 04h and 303 09h. It's clear? It's clear to all? Yes, sir. 300 00h Yes. 301 01h 302 04h and 303 09h. It's clear? Yes. Yes, sir. क्यों? ए 9 डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल में एक ही है इसीलिए स्टोर हो गया। 300 से स्टार्ट है इसीलिए 300 में पहला वैल्यू, 302 में 301 में सेकंड वैल्यू, 302 में थर्ड वैल्यू, 304 में नेक्स्ट फोर्थ वैल्यू। देखो 1 2 3 4 हर एक लगातार स्टोर होता जाएगा। अभी 304 इज नथिंग बट 16 को तुमने डेसिमल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 16 को तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 16 को आएगा 10। That's why देखो this is nothing but a 10. A 10 is stored into the 304. देखा? देखो 304 इधर आ गया। Is it clear? Is it clear? Yes, sir. तो 304 में क्यों? ये 300 में, ये 301 है, 302 है, ये 303 है, 304। Is it clear? तो 305 में क्या जाएगा? 19. 25 का जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है, 25 इन डेसिमल, उसका हेक्साडेसिमल क्या है? 19। देखो 19 में चला गया। नेक्स्ट 36 मतलब क्या है? 36 का 24. 36 मतलब 24, वो कौन सा मेमोरी लोकेशन में जाएगा? 306. देखो 306 में आ गया। इज इट क्लियर? देखो 306 में आ गया। ऐसे करके 307 के लिए 49, 308 के लिए 64 एंड 309 के लिए 81 आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू। ये समझ में आया कि नहीं? इज अ वेरी इजी, नॉट वेरी टफ। इतना देर तक समझ में आया किसी को? Yes, sir. अभी हम लोग 5 देंगे। हम लोग क्या करना चाहते हैं? लुक एट माय कॉपी। 5 देंगे तो 25 मिलेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग 19 विल बी डिस्प्ले इन द पोर्ट 2 पोर्ट P2 पोर्ट। ओके, सो 19 तो ऑलरेडी स्टोर कर दिया मैंने इधर। देखो 305 में
जो वैल्यू है 19 हम स्टोर कर दिया। नेक्स्ट अभी देखो इसको क्या है, अभी प्रोग्राम में आओ। तो ये नीचे तक तुम्हारा पूरा क्लियर है? ये नीचे तक हम समझा दिया तुम लोगों को, सबका क्लियर हो गया? ये नीचे तक हमें ऑलरेडी डिस्क्राइब क्लियर हो गया सबका? न किसी का मन में कोई डाउट्स है? नो सर। Okay, very good. Next, I am coming into the main program. सर एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा बस बतला दीजिए ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन। अच्छा, ये क्या है? मान के चलो मैंने तुमको एक सिस्टम डिजाइन करने बोला। सिस्टम मतलब एक हार्डवेयर सिस्टम बनाना पड़ेगा तुमको, जिसमें जो कैलकुलेटर जैसा होता है ना, मान के चलो माइक्रो कंट्रोलर से कैलकुलेटर बनाना है। जो हम लोग एक इनपुट देंगे 5, 6, 7, 8, 10 कुछ भी देंगे, उसका जो स्क्वायर है वो डिस्प्ले दिखाएगा पोर्ट 2 में। चारों पोर्ट है माइक्रो कंट्रोलर का, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। पोर्ट 1 में हम लोग इनपुट देंगे x वैल्यू विल बी गिवन इन अ पोर्ट 1। x वैल्यू इज गिवन इन अ पोर्ट 1। कौन सा में पोर्ट देंगे? पोर्ट 1 में। और डिस्प्ले में क्या मिलेगा? x स्क्वायर मिलेगा। किधर मिलेगा? पोर्ट 2 में मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। x देंगे बाहर से, स्क्वायर कौन करेगा? ये नीचे वाला टेबल करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं लुकअप टेबल। लुकअप टेबल मतलब लॉग टेबल। तुम लोग देखे हो लॉग टेबल कभी? लॉग Yes, टेबल कभी सुने हो? yes सर, मैथ्स के बुक के पीछे रहता है। है लॉग टेबल। लॉग टेबल का मतलब क्या होता है? कुछ भी लॉग का वैल्यू है वो टेबल को देख के बताना पड़ता है। यस और नो? यस सर। यस सर। यही लॉग 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 जैसा टेबल है, ऐसा ही एक्स स्क्वायर का मैंने एक टेबल बनाया। इसको हम लोग बोलते हैं लुक अप टेबल। देख के बताओ, लुक अप टेबल देख के बताओ, और कुछ नहीं। टेबल देख के आंसर बताओ। देखो 5 स्क्वायर मतलब 25, 8 स्क्वायर मतलब 64, 9 स्क्वायर मतलब 81 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इज इट क्लियर? यस सर। मतलब तुम देखो x देंगे तो x स्क्वायर कैसे होगा? मैंने 8085 में भी प्रोग्राम लिखे थे। यस और नो? x देंगे तो x स्क्वायर कैसे होगा? मैंने प्रोग्राम नहीं लिखाया था? मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर्स। यस सर। मगर इधर क्वेश्चन ही दूसरा है। इधर देख के तुमको बताना पड़ेगा, एक टेबल देख के बताना पड़ेगा। इधर कोई स्क्वायर निकालना नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? नीचे वाला टेबल समझ में आया? तो हम प्रोग्राम में जाए। यस। सो आई एम एंटर इनटू द प्रोग्राम। ORG का मतलब होता है, हर एक लाइन के ORG रहता है। ORG का मतलब होता है ओरिजिनेटिंग। ORG का मतलब होता है ओरिजिनेटिंग। ओरिजिनेटिंग जैसे ये टेबल किधर से शुरू हुआ था? ये टेबल किधर से शुरू हुआ था? 300H। 300H से। मगर ये जो प्रोग्राम है ये शुरू होगा 0H से। ये प्रोग्राम जो है ये शुरू होगा 0H से, मतलब 0000 मेमोरी लोकेशन से शुरू होगा। इज इट क्लियर? हर एक प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन शुड बी ORG 0000H। हम लोग इधर में सिर्फ 0000H से ही प्रोग्राम लिखेंगे ऑलवेज। दैट्स व्हाई ऑलवेज द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम शुड बी ORG 0000H। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is it clear to all of you? यस सर। First line of the program should be ORG 0000H. Next, I am coming into the next. Move DPTR, 300. This is a not a 8-bit address. This is a 16-bit address. You can connect 0 before them. This is a more than 8. So only the DPTR register is there. That's why DPTR के अंदर हम लोग 300 स्टोर करेंगे। DPTR के अंदर 300 स्टोर करेंगे। So DPTR के रजिस्टर के अंदर क्या रहेगा? अभी DPTR के अंदर क्या रहेगा? बोलो। सर 300H। 3000H means 300H. Am I right? Am I right?
Is it clear or not? Yes, sir. सेकेंड लाइन इज क्लियर। नेक्स्ट अभी बोलो, ये जो कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है, पोर्ट 1 हो रहा है और पोर्ट 2 हो रहा है। am I right or wrong? राइट सर। ये कौन सा पोर्ट इनपुट, कौन सा पोर्ट आउटपुट के लिए यूज होगा फॉर द पर्पस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर के लिए कौन सा पोर्ट इनपुट होगा, कौन सा पोर्ट आउटपुट होगा, बोलो। बोलो। P1 इनपुट होगा और P2 वेरी आउटपुट गुड, पोर्ट। वेरी गुड। P1 इनपुट होगा, P2 आउटपुट होगा। इनपुट होगा, आउटपुट होगा। am I right? everyone is clear? इसमें किसी का डाउट्स है? क्योंकि P1 में हमको x देना है और P2 में हमको x स्क्वायर मिलना है। तो P1 is the input and P2 will be the output. Is it clear or not? इसमें किसी का डाउट्स है? No, sir. Remember one thing, by default in microcontroller all the port used as an output. By default all the port used as an output. By default all the port used as an output. But sometime if you require as an input port, but sometime if you require as an input port, then you should be configure. Then you should be configure. Configure कैसे करोगे? Just see. With the help of these two line. देखो एक्यूमुलेटर में मैंने कैसे क्या ले लिया, FF ले लिया, राइट? इज इट क्लियर? मूव A, हैश FFH, 0FF मतलब FFH। तो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर के अंदर क्या स्टोर होगा? FF स्टोर होगा। Yes, sir. सेकेंड लाइन में मैंने क्या किया, मूव P1, A, मतलब P1 में एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू था FF, शुरुआत में कोई भी प्रोग्राम का कोई भी पोर्ट में हम हाई सिग्नल दे देंगे, मतलब ऑल द पिन्स आर गेटिंग। P1 में FF दिया मतलब क्या हुआ? P1 में FF मतलब क्या हुआ? P1 में कितना पिन है? P1.0 से लेकर कितना पिन है, बोलो कितना पिन है? 8। FF मतलब क्या है? बाइनरी कनेक्ट तो क्या होगा? बोलो। 1111111. ऑल आर 1, 8 1। तो ये पोर्ट 1 में देने से मतलब सब पिन में 1111 जाएगा, सब पिन में 1111 जाएगा, राइट? मतलब सारा पिन में तुमको हाई सिग्नल मिलेगा। हाई सिग्नल मिलेगा तो you will be great, you will be get हाई सिग्नल मिलेगा तो क्या होगा? You will be get as an input pin, you will be get as an input pin। आउटपुट पे करने के लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, मगर इनपुट करने के लिए हमको शुरुआत में प्रोग्राम में सारा को सारा 1 दे देना पड़ेगा। देखो मैंने ये दो जो लाइन मैंने लिखा है, सिर्फ P1 में हम FF भेजे हैं। किस लिए भेजा? देखो लिखा है साइड में, कॉन्फ़िगर P1 एज ए इनपुट पोर्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस सर। नेक्स्ट, हर एक पिन में, अभी अच्छे से समझो, हर एक पिन में ऐसे करके एक स्विच दिया हुआ है। हर एक पिन मान के चलो 5 वोल्ट देके कनेक्टेड है विद ए रेजिस्टेंस, हर एक पिन। तो इस पिन में अभी क्या सिग्नल, क्या वोल्टेज मिलना चाहिए? +5 वोल्ट मिलना चाहिए, हाँ या ना?
यस मान के चलो ये स्विच मैंने क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा स्पिन में? जीरो। जीरो मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए ग्राउंड पूरा इधर आ जाएगा, तो P1 में जीरो मिल जाएगा। तो तुमको जो देना है, मान के चलो 0.5 देना है। 0.5 मतलब इन बाइनरी 0.0.0.0.1.0.1, मतलब ये दो पिन छोड़ के बाकी सारा स्विच को प्रेस कंडीशन में रखना पड़ेगा। जो 1-1 है तो 1-1 तो डायरेक्टली मिल ही रहा है, 1-1 तो डायरेक्टली मिल ही रहा है, जब स्विच प्रेस करोगे तब जीरो मिलेगा। तो तुमको 0.5 देने के लिए ये 4 स्विच, ये स्विच एंड ये स्विच को प्रेस करना पड़ेगा, मोट 6 स्विच को प्रेस करना पड़ेगा जिसको जीरो करना है। इज इट क्लियर? किसी का कोई क्वेरीज है तो बताओ। सर लास्ट लाइन वाला नहीं समझ में आया। तुमको क्या देना था, देना है बोलो। मैंने क्या बोला था? 5 देना है। Zero. कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, मान के चलो 5 देना है। क्या देना है तुम बताओ। सर, तो इसमें तो बस FF ही ना देना होगा इनपुट पोर्ट करने के लिए। इनपुट पोर्ट करने के लिए वो बात खत्म हो गया, वो इतना दूर तक खत्म हो गया, इनपुट ओ। पोर्ट कर दिया। अभी हमको बाहर से इनपुट पोर्ट तो कर दिया, अभी बाहर से तो कोई ना कोई डेटा देना पड़ेगा, अच्छा यस सर। बाहर से तो कोई ना कोई डेटा देना पड़ेगा। इतना दूर तक खत्म हो गया, ऊपर वाला जो रेट मैंने मार्क कर दिया वो खत्म हो गया, इनपुट कर दिया। अभी हमको, हम जो बोल रहा था 5 दिया है, और यू नो आई एम गिवन इट 3, आई एम गिवन इट 2, आई एम गिवन इट 8, व्हाटएवर इट इज, से आई एम गिवन अ 5। 5 मींस इन बाइनरी 0.0.0.0.1.0.1। तो जो जो 1 है उसको स्विच प्रेस नहीं करना है, बट जो जो 0 है उसका स्विच प्रेस करना है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। जीरो वाला का स्विच प्रेस करना। 0 वाला का स्विच प्रेस करना है। क्यों? देखो, ये प्रेस नहीं करेंगे तो इसमें क्या मिल रहा था, P1.7 के बारे में सोचो। इधर से 5 वोल्ट दे रहा था, बट यू नो देयर इज अ रेजिस्टेंस, बट इट विल बी गेट 5 volt, means it will be get in binary, it will be get 1. Okay, but whenever I am pressing the switch, whenever I am close this circuit, then the ground is connected with that directly, there is a no resistance between that, so it will be getting 0. स्विच प्रेस करने से 0, स्विच प्रेस ना करने से 1। तो जो जो स्विच हमको प्रेस करना है, जो जो 0 है उसको उसको स्विच प्रेस कर देना है, तो आई विल बी गेटिंग 5। क्लियर और नॉट? यस सर। है क्लास में क्या सब चला गया? सिर्फ 2 ही जन रिप्लाई कर रहा है, तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आशीष क्या हुआ? कुछ नहीं सर। सो गया था क्या? समझ नींद खुला? नहीं सर, समझ रहा था। क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? कुछ भी तो बोल तो नहीं रहे हो। नहीं सर, समझ में आ रहा है। बाबली तो नहीं हमारे ऊपर गुस्सा में है, अब भी हो क्या? क्या सर? कुछ तो क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो, ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। अविनाश का भी क्वेश्चन सही है, ऐसा ही है। बीच में थोड़ा सा छूट गया था ना, तो इसलिए थोड़ा ब्रेक हो गया, तो थोड़ा थोड़ा समझ ब्रेक में नहीं, ये तो नया चीज समझा रहा हूँ। ब्रेक होने से भी क्या, नहीं होने से भी क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग सोच लेते हो पहले जे हमसे नहीं होगा क्या अविनाश? नहीं सर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सोचो मत, 100% तुम सही होगा। इज इट क्लियर? किसका मन में कोई डाउट है तो बताओ। Sonam is clear to you? यस सर। So basically, with the help of that, we can press the switch, we cannot press the switch according to that. Okay. Next, just look at this. You know, move P1 comma move A comma P1. What will be happen? तुमने जो स्विच प्रेस किया उसी का वैल्यू एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तुम 5 प्रेस किए हो
0 0 मतलब जो जो स्विच प्रेस करना तो किए हो, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गेटिंग 5. So 5 will be coming into the accumulator. Am I right or wrong? Move a comma P1 मतलब पोर्ट 1 में जो तुम प्रेस किए हो 5 6 कुछ भी, that will be coming into the accumulator. Is clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Next, just see move C a comma at the rate of a plus dptr. What are the functions? बोलो. सर ए प्लस डीपीटीआर जो एड्रेस है उस एड्रेस में जो होगा वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा. ए में क्या था? 5 था. यस सर. और डीपीटीआर 5 में मैंने दिया. 300. dptr में क्या था? 300. तो 305 में क्या है अभी बोलो. डीपीटीआर में हम लोग पहले से ही सेव करके रखे हैं 300, राइट. एक्यूमुलेटर में था 05, टुगेदर इज 305. इस मेमोरी लोकेशन में क्या है? 19. 19. तो 19 किधर आ जाएगा? एक्यूमुलेटर में. एक्यूमुलेटर में आ जाएगा. देखो ए, तो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 19. इज इट क्लियर? एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 19. ओके. तभी इसको कौन सा पोर्ट में भेजना है? पोर्ट 2. चले, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी मूव P2 कॉमा ए, मतलब 19 पोर्ट 2 में चला जाएगा. Yes, sir. 19 पोर्ट 2 में चला जाएगा. इज इट क्लियर? 19 पोर्ट 2 में चला जाएगा. नेक्स्ट इज जंप बैक. अगेन बैक मींस जंप ऑन दिस लाइन. अगेन पोर्ट 1 में कोई दूसरा वैल्यू दे रहे हो, 3 दे रहे हो, 4 दे रहे हो, जो भी दे रहे हो वो फिर से उसका स्क्वायर पोर्ट 2 में डिस्प्ले कर देगा. ऐसा चलते रहेगा. इट्स क्लियर? यस सर. सर इसमें हम लोग कुछ भी प्रेस कर सकते हैं. अगर हम लोग 19 करेंगे तो 19 करेंगे तो तुमको ये लुकअप टेबल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा सर. लुकअप टेबल को स्टोर करके रखना पड़ेगा. ओके. जितना लुकअप टेबल में स्टोर कर पाओगे उतना ही तुम्हारा वैल्यू लेगा. इज इट ओके क्लियर? सर. यस सर. So next we are coming into the different we are coming into the next is timer and counter. What is the timer? How many timers are there in 8051? How many timers? 2. Bolo. Sir, 2, sir. 2 timer. Yes. Timer 0 and timer 1. 1. ठीक. टाइमर एंड काउंटर किसको बोलते हैं? फिर कभी वो टाइमर की तरह एक्ट करता है, कभी काउंटर की तरह. मैंने एग्जाम्पल के साथ बोला था कब टाइमर बोलेंगे कब काउंटर बोलेंगे. Whenever count external clock pulses, then call counter. Whenever count internal clock pulses, then call timer. जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने बोला था, तुमको बोला 100 टाइम्स उठक बैठक करना है एंड काउंटिंग तुमको ही करना है, तो इट्स कॉल्ड टाइमर. तुम उठक बैठक कर रहे हो एंड यू नो बबली इज काउंटिंग, सो फॉर बबली इट्स अ काउंटर. वही एक्सटर्नल क्लॉक पल्स को काउंट कर रहे हैं. इज इट क्लियर? Is it clear to all of you? Yes, sir. यस सर. टाइमर एक रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर्स है. क्या रजिस्टर्स है? ये है रजिस्टर्स. टाइमर शॉर्ट नोट में आ सकता है, इसको लिख लो बढ़िया से. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
बढ़िया से पढ़ो, नहीं तो पास नहीं कर पाओगे, हम एकदम क्लियरली बोल दे रहे। इंटरनल में तुमको 30 में 30 देंगे, मगर एक्सटर्नल में मिलना मुश्किल हो जाएगा। समझा ना? C/T बार होगा, ठीक है? मैंने देखो इसके अंदर लिखे हैं, गेट C/T बार M1 M0, गेट C/T बार M1 M0. It's clear to all of you? Okay? सर ये तो सर C/T है ना? C/T बार, C/T बार दोनों में। अच्छा ओके सर। कंप्लीट। सर ये टी मॉड किधर पढ़े थे तुम लोग? कभी हम बोले थे? Any time I told you that what are the T mod? What are the functions of T mod? Tell me, which chapter? It's in a SFR. Full form is special function register. Am I right? In a special function register, I explaining you what is the T mod. Yes, sir. Is it clear? Yes sir. So basically, just see, get to M1 M0 up to this is called timer 1, the function of timer 1, and these 4 is for dedicated for timer 0. Is it clear? Timer 0 and timer 1. There are two timer for each. There is a 4-bit. One is a gate, another is C/T bar, another is the M1 and M0. And same for timer 0. Next, I'm coming into the what are the functions of these 4. Up to that is clear to everyone? Yes sir. Very good. हम क्लास में क्या बोलते हैं हर एक दिन? जे कुछ कम्युनिकेट करो बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. यस सर। मगर तुम लोग कम्युनिकेट Yes. करते हैं कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं सर। नहीं सर करते हो, क्यों बोलो तो? Yes sir. अंदर में एक गेट पिन है, उसको ऑफ करके रखा गया है। जब तक वो ऑन नहीं होता है तब तक तुम लोग करते नहीं हो। ऑन कैसे हो जाता है? मान के चलो आशीष का भी नींद खुल गया है, नींद में था, अभी नींद खुल गया, तो उठ के उसे गेट पिन ऑन हो गया, तो आशीष आवाज जाके रिप्लाई करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. एक गेट पिन मतलब क्या हम सेट कर रहे हैं, क्या आशीष खुद सेट कर रहे हैं? आशीष खुद सेट कर। Yes, exactly. So a gate pin not set by the user, it is a set by the hardware. It is automatically set. Whenever I am explaining you the TCON register timer control, then I am told you how to set the gate pin. It will be set by automatically. We are not set the gate pin. It will be set automatically. So gate pin is set by the hardware. Is it clear? After set this pin, corresponding timer will be start for counting the clock pulses. After set this pin, corresponding timer will be start for counting the clock pulses. Is it clear? Is it clear? Yes sir. So gate pin is not set by the us, gate pin set by the hardware. Whenever this pin is set,
After that, counter will be start for counting the clock pulses. Is it clear? Yes, sir. सर ये टाइमर भी बोलता है, इसको हम लोग काउंटर भी बोलता है, am I right? Yes, sir. ये टाइमर के हिसाब से काम करेगा का काउंटर के हिसाब से काम करेगा? That will be defined by C/T bar. That will be defined by C/T bar. If this pin is 0, then it's a timer operation. If this pin is 1, then it's a counter operation. If it's a 0, then it's a counter operation. 0 then timer operation, then 1 then it's a counter operation. Is it clear to all of you? Yes, sir. सर कितना पिन समझाया? 1 2 3 4, am I right? Yes, sir. Yes, sir. Next is M0 and M1. Next is M0 and M1. M1 and M0. This is the mode selection. 0 0, which mode? It's a mode 0. 0 1, it's a mode 1. 1 0, it's a mode 2. And 1 1, it's a mode 3. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. 1 minute. It's clear to all of you? Yes, sir. अभी मोड का क्या Yes, sir. फंक्शन है? हाँ बोलो सर, बोलो सर, जो कुछ बोल रहे थे समझ में आ गया। अच्छा, अभी ये चारों मोड का क्या फंक्शन है? चाइल्डहुड में लुक्का छुपी गेम खेले हो? यस सर। हाँ Yes, सर, sir. बहुत सर। बहुत सर खेले हो, हम भी बहुत खेले हैं। मान के चलो हम लोग अभी कितना जन है? अभी हम लोग इधर पार्टिसिपेशन है हमको लेकर 12। ओके, तो 12 के अंदर इज इट क्लियर? Yes, sir. ये 12 के अंदर 12 जन हम लोग एक साथ गेम खेलेंगे, तो मान के चलो कितना काउंटिंग करना पड़ेगा एक जन को? हम लोग जो करते थे पर हेड 10, सो 12 जन मेंबर है तो 120 काउंटिंग करना है। एम आई राइट? Yes. अभी मान के चलो ऐसे ही इधर हम क्लास में देख रहे हैं, एंड बाबली, एंड उसके बाद रिया, उसके बाद समीर तो बाबा ये अभी आजकल तो बात ही नहीं करता है, उसके बाद सत्यम, ये लोग हम लोग सो गया, नींद में है, अभी पूरा नींद में है। नो सर। नो सर। ये 4 जन के छोड़ के हम लोग कितना जन रहेंगे? 8, राइट? Yes, sir. तो 8 जन के अंदर एक गेम खेलेंगे तो क्या होगा? कितना कितना काउंट करना पड़ेगा? 80. 80। सो दिस इज नथिंग बट 18 काउंटिंग मोड। मतलब तुम्हारा काउंटिंग बड़ा चाहिए क्या छोटा चाहिए, डिपेंड अपॉन दैट you need to reduce the counting, you need to increase the counting. Means 13, in over here there are 4 mode: mode 0, mode 1, mode 2 and mode 3. In this 4 mode you can select any mode. If you require the maximum delay, then your mode will be, according to that you will be select the different mode. If your required shorter delay, means shorter time period is required, then your your mode will be different. Just I have given an example. Just you think about mode 0. It's a call 13-bit timer mode. It's a call
13-bit timer mode. It's a called 13-bit timer mode. Mode 1, it's a called 16-bit timer mode. I explaining you कैसे count होगा 13-bit, कैसे count होगा 16-bit. I will be explaining you. But 13-bit, 16-bit, it's a 8-bit. It's also 8-bit. तो समझ में आया? जब मोड छोटा है, मोड बड़ा है, जितना बड़ा होगा उससे उतना ज्यादा काउंट कर पाएगा. Is it clear to all of you? It's clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 13-bit है, 16-bit है, 8-bit है, 8-bit है. अभी हम एक एक करके आ रहे हैं कैसे क्या काउंट करेंगे. जैसे 13-bit टाइमर मोड, इट्स कॉल्ड 13-bit टाइमर मोड. हम लोग SFR में ये भी पढ़े थे 2 रजिस्टर के बारे में. एक का नाम दिए थे THX, एक का नाम दिए थे TLX. याद आ रहा है कि पता नहीं है? THX एंड TLX. ओके. THX मतलब क्या था मैंने बोले थे? बोलो तो, कौन, कोई भी बोलो तो. THX मतलब क्या था? 2 रजिस्टर का हम एक साथ बोले थे. TH 0 भी हो सकता टाइमर है, हाई TH 0 भी हो सकता है, TH 1 भी हो सकता है. 1 TH 0 फॉर टाइमर 0, TH 1 फॉर TH 0 फॉर टाइमर 0, TH 1 फॉर टाइमर 1 टाइमर 1. दोनों को एक साथ हम बोलेंगे तो THX बोलेंगे. ये भी 8-bit कर सकते हैं, ये भी 8-bit कर सकते हैं. ये मैक्सिमम लिमिट टुगेदर इज 16-bit, टुगेदर इज 16-bit. तो मैक्सिमम काउंटिंग इट्स 16-bit व्हिच इज इन मोड 1. अभी इसको छोटा भी कर सकते हो. जैसे फॉर 13-bit टाइमर मोड THX is for 8-bit and TLX for 5-bit. THX for 8-bit and TLX for 5-bit. Together how much? 13 bit 13-bit. It's clear to all of you? THX 8-bit, TLX 5-bit. Together 13-bit. yes sir 5-bit समझ नहीं आया. बोलो. 5-bit जब इस बिट मोड में जाएगा 13-bit टाइमर मोड में, तब इसका 8-bit यूज करेगा, इसका 5-bit यूज करेगा. तभी ना जाकर 8 + 5 13 होगा, तभी ना जाकर 8 + 5 13 होगा. इज इट क्लियर? तो पहले 5-bit में ले सकते थे, देन 8-bit. इधर भी 5-bit ले सकते थे, इधर भी 8-bit ले सकते थे. ये बोल रहे हो ना? यस सर. जो लिया उसी के ऊपर डिपेंड करेगा. इसके ऊपर क्या होता है, काउंटिंग थोड़ा चेंजेस होता है. आई विल बी एक्सप्लेनिंग कैसे काउंटिंग क्या चेंजेस होता है, कैसे क्या काउंटिंग है. आई विल बी एक्सप्लेनिंग 1 by 1. 16-bit टाइमर मोड मतलब इसका भी 8-bit लेना है, इसका भी 8-bit लेना है. टुगेदर कॉल्ड 16-bit टाइमर मोड. इट्स क्लियर? yes sir अच्छा, इसमें कितना काउंट कर सकते हैं? इसे मैक्सिमम कितना काउंट कर सकते हैं 13-bit में? पहले देख लेते हैं हम लोग 13-bit में क्या क्या कितना काउंट कर सकते हैं. 8-bit एंड 5-bit. ओके, 8-bit प्लस 5-bit टुगेदर इज 13-bit. यस सर. 8-bit मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0. बीट मतलब बाइनरी. मैक्सिमम इज 1 1 1 1 1 1 1 1. 5-bit मतलब 0 0 0 0 0 एंड इट्स 1 1 1 1 1. इधर से करो, इधर से करो, इधर से करो, इधर से करो. 0 0 0 0. Am I right? Am I right? इधर से करो F, इधर से करो 1, इधर से करो F, इधर से करो F. तो कितना काउंट कर सकता है? 0 0 0 0 H 2 F F 1 F H. Is it clear to all of you? यस सर.
जस्ट 16 मिनट होगा तो क्या होगा बोलो, हम नहीं बोलेंगे इसमें, इट्स फॉर 13 मिनट। 16 bit में एफ 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 हाँ 0 0 0 टारगेट किधर से होगा? 0 0 0 एफ 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 एच। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम कुछ बोलेंगे नहीं, तुम लोग जो बोलोगे वही होगा। इज इट क्लियर? यस सर। इससे थोड़ा बड़ा डिले तुम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर सबसे चालू कौन है क्लास में? चालू आदमी अंकिता। अंकिता, नॉट बाय मी ऑल्सो। अंकिता यू आर अ ग्रेट, हमसे भी चालू आदमी है। जक देखेंगे अंकिता को। नहीं सर, बबली बदमाश है, वही चालू है। चालू तो फिर मान के चलो हम ही सबसे ज्यादा चालू है। तुम लोग बदमाश है ये बोल दे रहे हो। बबली तुम हमको बोलते थे हम बहुत खुश हो जाते थे। तुमको इंटरनल में 30 में 5 मार्क्स कंफर्म दे देते थे। सबको 0 ही मिलेगा, तुमको 5 मिल जाता था। क्या सोनम कुछ बोलना चाहते हो? सर हम लोग को भी दे दीजिएगा 5 मार्क्स। तो बोला नहीं ना कोई, इसीलिए तो सबको 0 ही मिल गया। टोटल 5, नॉट सोच रहे जो मिलेगा उससे ज्यादा एक्स्ट्रा 5। सोनम कुछ बोलना चाहते हो? सर 5 हम लोग लेते आएंगे, छोड़ दीजिए। 5 लेते आओगे? यस सर। एक्सटर्नल क्वेश्चन इतना हार्ड होगा ना, सोच नहीं सकते हो। अच्छा बोलो, और कुछ बोलना चाहते हो तो हम आगे बढ़े। नो सर। वेरी गुड। तो हम बहुत चालू है। कितना जन इधर गेम खेल रहा था? एक जन तो निकल गया अभी। वाह वाह वाह, चमत्कार। कौन अभी निकल भी गया। ऐसा ही घर में खाना नहीं मिलता है, फिर अभी पानी भी नहीं मिल रहा है। ऐसा ही स्टूडेंट कम है, फिर एक निकल गया। इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, हमको भी पता नहीं है। Leave it. पहला बैच, you know I am getting this kind of things. Okay. So how much? ये tell me. कितना काउंट करना है? If 11 people is there. सर 110। 110 काउंटिंग करना है। अभी मान के चलो ये 110 में हम कैसे चीटिंग कर सकते हैं बोलो? फास्ट काउंट करके। फास्ट तो जो जितना फास्ट चाहेगा वो तो उतना फास्ट करेगा ही करेगा। ये तो कोई चीटिंग नहीं है। तो मतलब ऐसा तो बोला नहीं जे तुमको 10 सेकंड रुक रुक के काउंट करना होगा। जितना जितना स्पीड है उतना हिसाब से काउंट करेगा। चीटिंग कैसे कर सकते हो? तुम लोग कभी करते नहीं हो क्या चीटिंग फिटिंग? सर 10 के बाद डायरेक्ट 100। हैं? 10 के बाद डायरेक्ट 100 कर देंगे। 10 के बाद डायरेक्ट 100। और हम क्या करेंगे अभी? हम सुन लो। 100, 101, 102, 103, 109, 110। मतलब हम शुरुआती करेंगे 100 से, शुरुआती करेंगे 100 से और 80 से और 90 से और 70 से। अभी लास्ट में जब काउंटिंग करेंगे बहुत जोर जोर के चिल्ला के करेंगे। 109, 110। इसके बाद ना सोनम कुछ बोल पाएगा ना अंकिता कुछ बोल पाएगा जो सर आप काउंट नहीं किए। समझ में आया कि नहीं बोलो? यस यस सर, हम लोग भी करते थे, याद नहीं था। अच्छा वेरी गुड। तो तुम्हें याद नहीं था मगर हमारा तो याद है। अभी बबली तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है ना। बबली बहुत अच्छा इसे यू नो। अभी भी और एक घट गया। क्लास का बोरिंग चल रहा है, हम भी घट जाते हैं। नहीं सर, वो अभी मिड सेम खत्म हो गया ना, तो अटेंडेंस का किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए ये रीजन हो सकता है कि मतलब अटेंडेंस कम है इसका। किसी का प्रॉब्लम नहीं है मतलब मार्क्स मिल गया 30 में?
नहीं सर, मतलब मीट से हम नहीं देने मिलते थे ना, अटेंडेंस नहीं रहता था तो। अरे बाबा, अटेंडेंस अटेंडेंस सब छोड़ो, इंटरनल में मार्क्स हम देंगे, हम बिठाएंगे। जो 0 मिला उसको हम 30 बिठा सकते हैं, जो 30 मिला उसको हम 0 बिठा सकते हैं। क्या करना है कर लेना। अरे नहीं सीखोगे तो कैसे नौकरी मिलेगा, ये समझाओ। आज का जमाना ऐसा नहीं है जो घर से उठा के लेकर जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सर आप जो अभी पढ़ा रहे वो कल असाइनमेंट में था एनपीटीएल का। क्या? ये जो आप अभी पढ़ा रहे वो कल तो असाइनमेंट में। एनपीटीएल के असाइनमेंट हमको भेजना, हम क्या क्वेश्चंस में कोई डाउट्स है तो हम बता देंगे। यस सर। देखो एनपीटीएल का क्लास भी हम देखे, इतना बोरिंग रहता है तो क्या बोले, मगर सर नहीं हो पाता है एक भी। हम कोशिश करते हैं तुम लोगों को इंटरेस्टिंग कराने के लिए। मगर इफ यू पीपल आर नॉट विथ मी, हाउ आई कैन डू दैट? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, चलो जो भी है, जिसको सीखना है सीखेगा, जिसको नहीं सीखना है कोई बात नहीं है। क्या बोल रहा था? इनिशियल वैल्यू, बबली इज अ वेरी गुड गर्ल। तो बबली को लगा ना सर तो बहुत चीटिंग कर रहे हैं, सर शुरू कर रहे हैं 100 से। अभी बबली बोला सर हम नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ साइड में रहेंगे, हम सिर्फ देख रहे हैं सर। अभी बबली क्या करेगा, मान के चलो हमारे के बाद आशीष का टर्न आया, मतलब इसके बाद आशीष को काउंटिंग करना पड़ेगा, राइट? तो बबली क्या करेगा, आशीष सर स्टार्टिंग विद 100, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 100। सो आशीष कितना से स्टार्ट करेगा? 100 से। 100 से। मतलब आशीष को जो इनिशियल वैल्यू था हमारा वो देना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज आशीष को कभी नहीं पता चलता था सर किधर से स्टार्ट किए हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है। अभी मान के चलो ये मोड में हम जाना चाहता है, मगर हमको डिले भी छोटा चाहिए। ये मोड में हम जाना चाहता है मगर हमको डिले छोटा चाहिए, इतना बड़ा डिले नहीं चाहिए। 0000 से एफएफ काउंट मतलब बहुत बड़ा डिले है, हमको छोटा डिले चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू को एबीसीडी में फिक्स कर देंगे। तो एबीसीडी से कितना दूर तक काउंट करेगा, एफएफ तक काउंट करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। एबीसीडी से एफएफ तक काउंट करेगा। वेरी गुड। अभी एफएफ होने के बाद क्या होगा, 0000 में चला जाता है। तुमको एबीसीडी फिर से नहीं दोगे एबीसीडी, तो ये 00 से फिर चालू होगा एफएफ तक काउंट। मतलब सेकेंड टाइम जो डिले कैलकुलेशन करेगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। हर एक बार एबीसीडी से एफएफ नहीं होगा, मतलब हर एक बार तुमको एबीसीडी इनिशियल वैल्यू देना पड़ेगा टू सेम डिले, टू क्रिएट द सेम डिले। वन टाइम डिले चाहिए तो ठीक है, मगर मान के चलो ये डिले बार बार चाहिए तुमको, 10 बार चाहिए, 20 बार चाहिए। सो यू शुड बी गिवन इनिशियल वैल्यू एवरी टाइम, एबीसीडी यू शुड बी गिवन इन एवरी टाइम, देन योर डिले विल बी रिड्यूस्ड। इज इट क्लियर? यस सर। अभी मान के चलो ये जो प्रॉब्लम था इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया मोड 2 ने। मोड 2 मतलब 8 बिट, इसका नाम है 8 बिट ऑटो रिलोड मोड। 8 बिट ऑटो रिलोड मोड, 8 बिट ऑटो रिलोड मोड। देखो लिखा है 8 बिट ऑटो रिलोड मोड, मैंने स्लाइड में भी लिखा है 8 बिट ऑटो रिलोड मोड। ये कितना काउंट कर सकते हैं 8 बिट, मतलब 00 से लेकर एफएफ तक। ओके, इधर में THX का दूसरा फंक्शन, TLX का दूसरा फंक्शन। TLX का फंक्शन है काउंट करना, TLX का फंक्शन है ए काउंट करना। मान के चलो 00 से एफएफ भी नहीं चाहिए, हमको इससे भी छोटा डिले चाहिए। तो हमको चाहिए मान के चलो AB से लेकर एफएफ तक काउंट, AB से लेकर एफएफ तक काउंट। इज इट क्लियर? AB से लेकर एफएफ तक काउंट। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये जो AB है ये स्टोर रहेगा THX में। जब FF के बाद 0 होगा
फिर से ये वैल्यू इधर में आ जाएगा, फिर से ये 0 हटके फिर से ए बी हो जाएगा TLX में, ये भी हो जाएगा TLX में, फिर ए बी से FF तक काउंट करेगा। मतलब जो बाबली काम कर रहा था वही ऑटो रिलोड मोड में काम होगा। इनिशियल वैल्यू जो हम देंगे उसी को बार बार ऑटोमेटिकली इट विल बी स्टोर्ड। सो तुमको बार बार तुमको अलग से कुछ देने का जरूरत नहीं है। इट्स क्लियर? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर पहले वाले में हम लोग को बार बार देने की जरूरत पड़ रही थी, 16 जरूरत पड़ रहा था, राइट। तुमको जब भी फिर से ABCD से शुरू करना है, फिर से तुमको ABCD डालना पड़ेगा THX एंड TLX में, मगर इधर देने का जरूरत नहीं। एक बार THX में दे दो, बार बार जब खत्म होगा ऑटोमेटिकली ये फिर THX से TLX में चला जाएगा और TLX और AB से ही काउंट करेगा शुरू। मतलब डिले हर एक जगह में आइडेंटिकल होगा, तुमको ऑटो रिलोड मोड में देना नहीं है। ओके? यस सर। And split timer mode is very easy. It's TI is 0 for timer 1 and TL0 is for timer 0. 8 बिट करेगा, दोनों ही 8 बिट है। देखो TL0 भी 8 बिट है, TH0 भी 8 बिट है, दोनों 8 बिट है। ये हर एक में 00 से लेकर FF तक काउंट कर सकते हैं। Okay? Is it clear? हाँ? यस सर। बहुत जन तुम लोगों को समझाएगा इसका फॉर्मूला कैसे है, कितना काउंट करेगा, मगर हम थोड़ा दूसरी तरह से समझाता हूं, बहुत अच्छा से सुन लेना। ये काउंट कितना करेगा, इसके लिए डिले कितना होगा, ठीक है? देखो मैंने शुरू किधर से किया था, ABCD से किया था, ठीक है? ABCD से लास्ट काउंट कितना दूर तक जाएगा? FF, वेरी गुड। FF तक जाएगा, हाँ या ना में आंसर दो। FF तक जाएगा, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? ABC E, इसके बाद CF अप टू ABFF, अप टू ABFF, राइट? यस सर। इसके बाद क्या होगा? ABFF के बाद बोलो, ABFF के बाद क्या होगा? क्या होगा ABFF के बाद? AC00। AC00 कितना दूर तक जाएगा? ACFF, फिर AD00, फिर ADFF। बोलो तो AC00 से लेकर ACFF कितना काउंट होगा? जीरो से FF मतलब कितना? बोलो। FF मतलब काली तो बोला था कितना होता है डेसिमल में? डेसिमल में FF का वैल्यू कितना? 255। 00 से 255 का मतलब 256 काउंट। ओके? AD00 से ADFF कितना काउंट होगा? 256 काउंट इधर भी होगा। ओके? ये कितना दूर तक जाएगा? FF तक, राइट? यस तुम इसके बारे में थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, ऊपर वाला के लिए। अभी नीचे वाला हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो तो FF माइनस AC इंटू 256 हो सकता है कि नहीं? इतना दूर तक काउंट। FF माइनस AC इंटू 256
हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। सोच समझ के बोलो, हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो। इसमें Yes, एक sir. गलती है, +1 होगा। +1 क्यों होगा? FF माइनस AC +1 इंटू 256। ए मान के चलो 3 है, ए मान के चलो 5 है, तो 3 से 5 काउंट जब होगा, 5 माइनस 3 +1, हाँ या ना? फाइव माइनस 3 +1, 2 3 4 5 3 आता है। देखो 5 माइनस 3 करने से 2 आता है, +1 करेंगे तो हमारा 3 आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। इज इट क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? तो वन टाइम रिपीट कीजिएगा सर। हम बोल रहे हैं एसी से एफ ये जो दाग मैंने दिया है, इतना दूर तक काउंट कितना काउंट होगा? मैंने क्या बोला? एफ ये जो पोर्शन है ये तो एक एक करके बढ़ेगा, लास्ट में एफ आएगा, तो ये एफ माइनस एसी। और देखो मैंने क्या बोला, 3 से 5 काउंट करो, 3 4 5 कितना होता है? 3 होता है, 3 4 5 3 होता है। अभी हम फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या करेंगे? 5 माइनस 3 +1, तो एफ माइनस एसी +1 हर एक बार के लिए क्या होगा? 256, सो इंटू 256, एक एक बढ़ेगा और 256 होगा। देखो एसी से एडी हुआ, फिर 256, एडी से एई होगा, फिर 256, एई से एफ होगा, फिर 256, ऐसे करके हर एक के लिए 256 होगा, हाँ या ना? यस सर। तो इसीलिए इंटू 256। और मैंने बोला 5 माइनस 3 +1, कोई भी मतलब एफ माइनस एसी +1, एसी से काउंट शुरू हो जाएगा, एसी को हम ये नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने एफ माइनस एसी +1। ओके, यस सर। एफ +1 मतलब क्या है? एफ +1 मतलब 100 हाँ, सर। 100 अब 100 हेक्साडेसिमल में, हमें नहीं मांग रहा है, डेसिमल में बोलो। एफ मतलब क्या है? एफ मतलब क्या है? 255 +1 करने 255 से क्या होगा? 256 माइनस एसी इंटू 256 होगा। यस सर। सर एक्चुअली एक काउंटिंग जो करता है 2 रजिस्टर, मैंने जो बोला क्या नाम है उसका? अभी अभी बोला, क्या बोला? तो THX एंड TLX, मतलब इधर TAB होगा, इधर CD होगा, तब भी ABCD से काउंटिंग शुरू होगा। Am I right? इधर Yes, sir. इधर से AB शुरू होगा, इधर से CD शुरू होगा, तब भी ABCD से स्टार्ट होगा। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. So basically just see, ये जो वैल्यू था ये THX का था, ये जो वैल्यू था ये किसका था? TLX का था। यस और नो? सर AC के साथ THX का क्या रिलेशन है बोलो तो, एक रिलेशन बनाओ तो। ये जो AC है इसके साथ THX का क्या रिलेशन होगा? AC का जगह में हम लिख सकते हैं THX +1। Yes, sir. Yes, sir. है? yes sir. Yes, sir. So we can write, you know, we can write THX +1. Am I right? Yes, sir.
सो हमने लिख रहा है 256 माइनस THX प्लस 1। सर कॉपी थोड़ा ऊपर कीजिए ना, नहीं दिख रहा है। 256 माइनस THX प्लस 1 इंटू 256। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट सर, कितना दूर तक काउंट किया मैंने? इतना दूर तक, नीचे वाला पोर्शन। Am I right? नीचे वाला पोर्शन के लिए काउंट किया, यस सर। ऊपर वाला पोर्शन के लिए क्या होगा? हम बोल सकते हैं FF माइनस CD प्लस 1। यस सर। FF माइनस CD प्लस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो? इसको क्या लिखेंगे? FF प्लस 1 को क्या लिखेंगे? 256। 256। CD को क्या लिखेंगे? TLX। वेरी गुड। सो अभी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्लस 256 माइनस TLX। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? मैंने कभी नहीं बोलेंगे इसको, तुम लोग याद करो। फॉर्मूला तुम खुद से बना सकते हो, बहुत इजी है। 256 माइनस TLX। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अभी इसके लिए कितना टाइम लगेगा, कैसे निकलेगा? हाँ बोलो। ये फॉर्मूला क्या निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे? टाइम अभी तक कितना काउंटिंग किया वो निकला है। अभी हर एक के लिए एक एक मशीन साइकिल लगेगा। अभी फॉर्मूला उस साइड में हम पूरा फ्रेश करके लिख रहे हैं। क्या फॉर्मूला है तुम बोलो? बोलो। 256 माइनस THX प्लस 1 इंटू 256 इंटू 256 प्लस 256 माइनस TLX। ओके, ये है फॉर्मूला टोटल। अभी टाइम के लिए क्या होगा? इनटू हर एक मशीन साइकिल के लिए कितना टी स्टेट? 12 इंटू 12। ओके, बाय FOSC frequency of oscillations, by FOSC frequency of oscillations. Is it clear? It's clear to all of you? यस सर। So by FOSC, that is frequency of oscillations, मतलब 12 मेगाहर्ट्ज तो 12 होगा, 11.0592 megahertz, so 11.0592 होगा. Whatever the frequency you have, you will be put it over here. So that is the time with respect to whatever the in a mode 2. Okay. Mode 2 formula is clear to all of you? Yes, sir. Tomorrow I will be explain. Tomorrow we can take. I can take the class. I have the class ना. Tomorrow ना नहीं है. Hello. तो फ्राइडे को नहीं है लगा था। नहीं है, मगर अभी तो करना पड़ेगा ना, सब करना चाहते हैं। देखो हाँ, कुछ मैनेज कर पाओगे तो कोई हमको मैसेज कर देना, ठीक है? अभी बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. हम चाह रहे हैं लेने के लिए, कल हो जाए तो बढ़िया होगा। सर अगर Okay. क्लास तो क्लास चल नहीं रहा तो आप कर सकते थे।
हाँ, सकते तो हैं हमारा सर। 2 बजे से क्लास हो सकता है। फिर भी तुम एक बार एचओडी मैडम के साथ बात करके हमको एक बार, हम तो ग्रुप में भी है, मैसेज नहीं करता क्योंकि हम रिलेटेड नहीं है इसलिए। तो तुम ग्रुप में लिख देना और टुमारो क्लास मैडम को बोल देना टुमारो क्लासेस इज पॉसिबल कि ना, सर के साथ एक बार बात कर लीजिए, सर लेना चाहता है। ठीक है, तो हम लिंक बना के भेज देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर अभी अभी बोल देना है, यस सर। अभी अभी बोल देना। Okay, we are leaving for today. We are again coming into the tomorrow. सर ये जो हाँ, बोलो। स्लाइड्स पढ़ाते हैं उसको गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मगर तुम बोल रहे हो इसलिए कर सकते। रात का क्लास अपलोड होगा क्या सर यूट्यूब? हाँ, वीडियो अपलोड होगा। यस सर।